Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Gatiranyata Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Gatiranyata ओके, हरे कृष्णा। तो मैंने इंग्लिश में लिखा है, तो मैं इसको पहले इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, तो फिर हम लोग इसको मैं थोड़ा सा हिंदी में बताने का प्रयास करता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्कायते गिरिं यत्कृपातमहं श्रीभगवद्गीतार्णं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वर। श्री प्रभुपाद व्यास पूजा महामहोत्सव की जय। Dear Srila Prabhupada, please accept my humble obeisances at your lotus feet. On this auspicious day of your appearance, we are fortunate enough to do your glorification for our own purification. A great Vaishnava like His Divine Grace appears in this mortal world just for the sake of claiming back conditioned and wretched souls like myself. Without you, we were roaming in hellish planets and living a very sinful life. You taught us the dharmic way of life and how to be a human being and not live lives like animals. You brought us in the light of knowledge, due to which we are now able to see the difference between good and bad, Sura and Asura. If not, we too would have been one of the demonic mentality personality. And for this, you took all the trouble, your faith in the words of your spiritual master, and you took all the trouble to go to West at such an age where people retire from their life, and you started your journey at this age to save the whole humanity. You weren't aware of how this mission would start, but your full faith in the words of your spiritual master, His Holiness Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada, was the only hope that the prophecy is going to be fulfilled. I pray on this auspicious day that may I too have complete faith in the words of my spiritual master and carry on this mission of Lord Chaitanya. Your dedication to write scriptures in English language for the sake of whole humanity, the world, as instructed to you by your spiritual master is amazing. Your Divine Grace has written so many books in such a small span of few years that even if I spend my whole life, I wouldn't be able to live understanding it. For that purpose, you used to wake up at 2 a.m. and used to translate the literatures. I have been trying to read Bhagavad Gita as it is for past so many years, but still every time I read, I feel that I had never read it, and every time it gives me a different realization. You were an perfect Acharya. You followed yourself all the regulations laid down by you. His Divine Grace used to wake up early hours in the morning, even in winter season, where the temperature is ice cold, and you used to take bath with the cold water and begin your sadhana. That too at an age of 60, where people take a rest throughout the day. I feel ashamed that even with a slight discomfort, I compromise with my schedule. Your dedication can be seen in your Divine Grace kept translating the book even till the last breath of your life. In your last days of your lives, there was so much pain and discomfort, but still your determination to go on was amazing. On this auspicious day, we pray at your lotus feet, Srila Prabhupada, that may we have your mercy to go on with the mission
and serve the words of our spiritual master. So we can be some use in the mission of Lord Chaitanya. Yours insignificant servant, Gopi Manohar Das, Kunjeshwari, गोविंद चरण दास एंड प्रेमावती। तो यहाँ पे जो है हम जो है प्रभुपाद जी का जो डेडिकेशन है उनके गुरु के आदेश के प्रति, तो इतना उनका प्रगाढ़ विश्वास था उनके गुरु के वचनों पर, और उनके उस वचनों को पूर्ण करने के लिए प्रभुपाद जी उस उम्र में 60 साल की उम्र में प्रभुपाद जी वहां पे वेस्ट में गए, और वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे उनको कुछ पता नहीं था कैसे जाना है, क्या करना है। आज हम लोग को कोई बोले कि तुम बॉम्बे में ही किसी एरिया पे चले जाओ, वहां पे तुमको 10 दिन के लिए वहां पे रुकना है, तो हम लोग परेशान हो जाएंगे, मैं रहूंगा कहाँ पे, मैं खाऊंगा कहाँ पे, मैं मुझे एसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, रूम कैसा होगा। बट प्रभुपाद जी का डेडिकेशन अपने गुरु के लिए इतना प्रगाढ़ था कि उन्होंने ये सब कुछ नहीं सोचा, बस ये मेरे गुरु का वचन मुझे कैसे पूरा करना है। और उसके लिए वो एक ऐसे देश में निकल गए, अपना इंडिया भी छोड़ो, इंडिया में भी नहीं थे वो, दूसरे देश में जहाँ पे किसी को नहीं जानते थे, और वहां पे जाके अनजान लोगों के बीच वहां पे जाके उन्होंने इस इंस्कॉन जो संस्था है उसका स्थापना किया। और हम लोग देखते हैं प्रभुपाद जी को आज जो हम लोग इस्कॉन को देख रहे हैं, इट्स वेरी फ्लरिश्ड, सब जगह पे बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े होटल्स है। आज दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ हम लोग को सारा फैसिलिटी मिलेगा, लेकिन प्रभुपाद जी जब गए थे तो वहां पे कुछ नहीं था। उनको सारा मतलब शुरुआत के जो दिनों थे उनमें उनको काफी स्ट्रगल करना पड़ा, उनके रहने की ढंग से व्यवस्था नहीं थी, और जिनके साथ रहते थे, जो स्टार्ट में जो सैम अग्रवाल और सैली अग्रवाल के साथ रुके थे, तो वो जो है मांसाहार करते थे। तो प्रभुपाद जी अपना जो भोग का जो था सारा सामग्री वहीं पे उसी फ्रिज में रखते थे, और उसी में से बना के वो भगवान को भोग लगा के प्रार्थना करके उसको ग्रहण करते थे। तो हम लोग देख सकते हैं प्रभुपाद जी कितने कृपालु थे कि हमारे कितना कंपैशन था कि हमारे लिए उन्होंने क्या क्या सहन किया, उन्होंने कैसे कैसे परिस्थिति में रहे। एक तो जो दूसरी जगह पे गए तो वहां पे एक ड्रग एडिक्ट था, और एक बार तो इतना मतलब ऑलमोस्ट जानलेवा हमला कर दिया था प्रभुपाद जी पे। तो प्रभुपाद जी ने ये सब सहा। फिर हम देखते हैं जब प्रभुपाद जी जब कार्गो में जब गए तो वहां पे उनको 2 बड़ा हार्ट अटैक आया था, एंड उस हार्ट अटैक से भी वो विचलित नहीं है। हम लोग तो थोड़ा सा जो है कुछ हो जाता है, हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो हम लोग एकदम डगमगा जाते हैं कि अब कैसे करूं, मैं क्या करूं। लेकिन प्रभुपाद जी उस उम्र में 60-70 साल की उम्र में प्रभुपाद जी 2 हार्ट अटैक सहन करते हुए गए। यहाँ पे हम लोग को ये भी समझना, हार्ट अटैक तो बहुत बड़ी बात है। वहां पे हम लोग ने कितने लोगों ने पता नहीं बोट में हम लोग ने ट्रैवल किया है, क्रूज में अगर किसी ने किया होगा तो इट इज मतलब एक आधा घंटा 1 घंटे में बहुत मजा आता है, लेकिन टू ट्रैवल फॉर मेनी डेज इट्स नॉट एन इजी टास्क। सो मोशन सिकनेस होता है, उल्टी आती है, तबीयत खराब होता है यंग लोगों का। और प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में उन्होंने प्रभुपाद जी ये सारा जो तकलीफ सहन किया था। तो हम लोग देख सकते हैं प्रभुपाद जी के मन में कितनी करुणा है हमारे लिए, सारे विश्व के लिए और सारे मानव समाज के लिए। तो जो हम देखते हैं जो वैष्णव के जो 26 गुण हैं उसमें से एक जो गुण है करुणा का, और वो करुणा प्रभुपाद जी के मन में थी, और उसके कारण उन्होंने ये सारा जो इतना कुछ जो था उन्होंने सहन किया उन्होंने। और एक उनका पास टाइम मुझे याद आता है कि एक बार प्रभुपाद जी जब प्रसाद ले रहे थे तब देखा कि एक छोटी सी एक चींटी थी या मक्खी थी, पता आई थिंक चींटी थी शायद, तो वो
एकदम जो थी वहाँ पे ऐसे मतलब प्लेट के पास ही ऐसी मतलब घूम रही थी, एकदम कमजोर थी, कुछ हो गया था उसको। तो दूसरा कोई होगा तो तुरंत उसको ऐसा हटा देता, लेकिन प्रभुपाद जी इसको देख रहे थे और फिर बाद में एक अपने शिष्य को बुलाया, बोला ये लगता है इस चींटी ने बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है, इसको थोड़ा सा प्रसाद खिलाओ, इसको बहुत कमजोर हो गई है। तो न सिर्फ मानव समाज के प्रति लेकिन इवन जो थे सारे जीवों के प्रति उनका बहुत ही उनका करुणा था। और ये जो फूड फॉर लाइफ जो आज चल रहा है वो भी उनके इस करुणा का ही अ, एक एक रिजल्ट है। क्योंकि एक बार मायापुर में जब वो थे तो वो अपने जब बालकनी से जब देख रहे थे तब उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे बाहर जो प्रसाद का जो जो फेंका गया प्रसाद का जो कूड़ा था वो कुत्ते वहां पे खा रहे थे, तो बच्चे जो है वो कुत्तों से लड़ाई करके वो लेने का प्रयास कर रहे थे। तो ये देख के उनको एकदम आंख में आंसू आ गए कि ये गरीब बच्चों को मतलब क्या हाल है, देखो ये फेंका हुआ जो है खाना है और उसके लिए ये लोग कुत्तों से लड़ाई करे। तब से प्रभुपाद जी ने आदेश दे दिया, आज के बाद पूरे इस्कॉन के उन्होंने कुछ अनाउंस किया, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन इतने किलोमीटर का, 10 किलोमीटर ऐसा कुछ था कि 10 किलोमीटर की रेडियस में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। एंड तब से जो है ये फूड फॉर लाइफ जो है ये चल रहा है और कई गरीबों को जो है ये जो है मंदिर का जो प्रसाद है ये मिलता है। तो प्रभुपाद की जो करुणा थी जीवों के प्रति, इनके इनके भौतिक स्वास्थ्य के लिए, आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए, कि मतलब कितनी प्रगाढ़ थी हम लोग देख सकते हैं। और उनका जो डेडिकेशन था प्रभुपाद जी का अपने गुरु के प्रति, वो हम लोग देखते हैं कि कैसे उन्होंने इतना सारा तकलीफ सहन किया और रात को 2 बजे उठ कर प्रभुपाद जी जो है अपना ट्रांसलेशन करते थे। हार्डली वो 2 या 3 घंटा सोते थे और फिर से वो जो थे ट्रांसलेशन करते थे। उनका जो मतलब कहा जाता है प्रभुपाद जी जो है मॉडर्न डे व्यासदेव, क्योंकि व्यासदेव जी हम लोग जानते हैं इतना सारा लिटरेचर्स लिखा है। तो प्रभुपाद जी जो है वो हमारे मॉडर्न डे व्यासदेव है, क्योंकि उन्होंने भी जो इतने सारे जो ग्रंथ लिखे हैं, इट इज इम्पॉसिबल कि हम लोग उसको पढ़ सके। हम लोग समझना तो बहुत दूर की बात है, इवन पढ़ना भी अगर हम लोग चाहें उसको तो हमारा पूरा लाइफ टाइम निकल जाएगा, लेकिन हम लोग उसको पढ़ नहीं पाएंगे। और ये सारा जो है प्रभुपाद जी ने सिर्फ एक छोटे से 10 साल जो प्रभुपाद जी वेस्ट में थे, उस 10 साल के आयु में उन्होंने इतना कार्य पूरा जो इतने सारे पूरे विश्व भर में 108 मंदिर बनाए, इतना सारा ट्रांसलेशंस किया, इतने सारे बुक्स लिखे, इतने दुनिया भर में प्रचार के लिए वो घूमे। तो ये कोई साधारण काम नहीं था। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी जो है कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो एक साक्षात, जैसे हम आचार्य लोग हमारे कहते हैं, विष्णु कहते हैं कि वो शक्ति आवेश अवतार थे। और उन्हीं के कारण जो है हम लोग आज जो है इस बहुत अच्छे हम लोग एक वातावरण में है हम लोग, नहीं तो पता नहीं हम लोग भी कहाँ होते। हम लोग भी किसी गलत संगत में होते, गलत कार्य कर रहे होते, पापमय कृत्यों में लगे होते, और हम लोग जो आज भक्ति करके ऊपर जाने का प्रयास कर रहे हैं वो हम लोग नीचे नरक की तरफ हम लोग जो है अपना रास्ता बना रहे होते। और प्रभुपाद जी जो थे वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ दूसरों को आदेश देते, वो पहले खुद फॉलो करते। तो जैसे आचार्य होते हैं, आचार्य मतलब वो पहले खुद आचरण करते। तो मैंने एक बार प्रभुपाद लीलामृत में पढ़ा था कि प्रभुपाद जी रात को या एकदम अर्ली मॉर्निंग में, मतलब वो भी दिल्ली वृंदावन सो कोल्ड विंटर के समय में, मतलब वहाँ पे हम लोग जस्ट इमेजिन कर सकते हैं, हम लोग कभी एक बार विंटर में जाओ वहाँ पे कितना ठंड होता है। उस क्लाइमेट में प्रभुपाद जी उस एज में 60 इयर्स के एज में वहाँ पे सुबह उठ के उस ठंडे पानी से नहा के
तो अपनी साधना करते थे। आज हम लोग यहाँ पे इतने कंफर्टेबल मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है, लेकिन फिर भी हम लोगों को सुबह सुबह गर्म पानी चाहिए होता है। जस्ट इमेजिन प्रभुपाद जी का जो साधना कितना स्ट्रिक्ट था कि जो है ये टाइम पे ये उठना है, ये टाइम पे नहाना है और अपना साधना करना। तो इट वाज सो मतलब उनका लाइफ से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं हम लोग। तो वो हम लोगों को लेसन्स जो हैं उनके जीवनी से हम लोग लेना चाहिए। उनका डेडिकेशन अपने गुरु के प्रति, उनकी करुणा, उनका हर एक जो, जैसे सनातन प्रभु ने कहा विटी थे वो इतने, कभी भी किसी ने कोई प्रश्न पूछा तो ऐसा नहीं कि वो मतलब सोचते थे, ऐसा नहीं, तुरंत एकदम हाजिर जवाब, एकदम फट से एकदम ऐसा, और ऐसा जबरदस्त आंसर देते थे कि सामने वाले जो है उसको आंसर भी मिल जाता था और उसका मुंह भी बंद हो जाता था। प्रभुपाद बस रियली एक ट्रांसेंडेंटल आध्यात्मिक पर्सनालिटी के व्यक्ति थे। और हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोग इस आध्यात्मिक पर्सनालिटी से हम लोग जुड़े हैं। हमारे पर कृपा है कि प्रभुपाद जी से हम लोग इतना कुछ हम लोग ग्रहण कर रहे हैं। और आज हम लोग जो है इस शुभ अवसर पर हम लोग वही हमारा जो कृतज्ञता है हम प्रभुपाद जी को दिखाते हैं कि अगर आप नहीं होते तो हमारा क्या होता। तो ये प्रभुपाद जी का करुणा है, प्रभुपाद जी का कृपा है, जिसके कारण हम लोग आज इतने अच्छे मार्ग पे लगे हैं और भक्ति में हम लोग जो है जुड़ गए हैं और भक्ति हम लोग कर रहे हैं। तो हम जितना भी हम लोग प्रभुपाद जी का धन्यवाद करें अपना, तो काफी नहीं है हम लोगों के लिए। तो वी शुड ऑलवेज, हम लोगों को एक ही ये प्रण लेना है कि प्रभुपाद कि हम आपके जो है पद चिन्हों पर तो नहीं चल सकते, लेकिन आपने जो किया है उसका 0.0001% भी अगर हम लोग कर सके हम लोग, तो हमारा जीवन धन्य होगा। तो यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभुपाद हमको शक्ति दे कि हम अच्छे से अपनी साधना कर सके, अच्छे से हम लोग ग्रंथ पढ़ सकें जो प्रभुपाद जी ने लिखे हैं, उसको समझ सके। हम लोग न सिर्फ पढ़े, हम लोग उसको समझ सकें। और हमारा जो साधु संघ ग्रुप है ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग न सिर्फ पढ़ते हैं उसको, हम लोग ऐसा नहीं है रट नहीं रहे हैं हम लोग उसको, उसका मीनिंग क्या है कि पढ़ के पीछे प्रभुपाद जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम लोग उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो वी आर थैंकफुल टू श्रील प्रभुपाद। और हम जो है इसी तरह हम लोग प्रयास करते रहेंगे कि हम प्रभुपाद की वाणी का कुछ अनुसरण हम लोग कर सकें। तो नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। प्रिय श्रील 127वें अवतरण दिवस पर यह लिखने का अवसर पाकर मैं स्वयं को भाग्यशाली मानता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं आपको धन्यवाद कहाँ से शुरू करूँ। मेरे जीवन में हर दृष्टि से शुभ होने वाली हर चीज का कारण आप ही है। प्रिय प्रभुपाद, जब भी मैं आपके प्रणाम मंत्र का पाठ करता हूँ तो मुझे याद आता है कि आपने मेरे जीवन और मेरे आसपास के लोगों के जीवन में कितना बड़ा बदलाव लाया है। आपने मुझे जो सबसे बड़ा उपहार दिया है वह है कि इस्कॉन के माध्यम से दीक्षा गुरुओं को हमारे जीवन में लाना और मुझे मेरे जीवन के वास्तविक उद्देश्य का एहसास करना। कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दे ताकि मैं अपनी कृष्ण भावनामृत चेतना की अच्छी तरह से अभ्यास कर सकूं, अपना जप कर सकूं, नियम सिद्धांतों का पालन कर सकूं, नियमित रूप से आपकी किताबें पढ़ सकूं, हमेशा भक्तों की सेवा कर सकूं और उनके साथ रह सकूं और अपने दिल में भगवान के लिए सच्चा प्यार विकसित कर सकूं। मैं आपको अपनी भेंट इस श्लोक के साथ समाप्त करना चाहूंगा। यदि प्रभुपाद न होते तबे की होते ये जीवन बहते की शोक। इस भौतिक दुनिया में आने और मुझ जैसे दुर्भाग्यपूर्ण गिरे हुए आत्माओं को
बचाने के लिए प्रभुपाद को धन्यवाद। वास्तव में आप मेरे लिए भगवान कृष्ण के सबसे अद्भुत उपहार है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Hare Krishna. Thank you very much, Prabhu. Nice repetition. ठीक है. Next, Vaijanti Mataji. Hare Krishna, Prabhuji. I've written it in English. Is it okay if I read it in English, Prabhuji? Yes, Mataji. Me too. I have written in English. Thank you. Hare Krishna. I pay my heartfelt respects and obeisances to Srila Prabhupada on this glorious day. Your tireless and ceaseless effort to make Krishna available to all is truly phenomenal. Your books, be it the Bhagavad Gita as it is, Nectar of Instruction or Nectar of Devotion, are my most cherished treasures and precious belongings. Your books are an ocean of knowledge. They are not only interesting and beautifully explained, but very addictive also. The more I read, the more I want to know, and I know there is much more to know along the way. This opportunity to read your books, either by myself or with other devotees, is indeed a much savored blessing. Thank you so much for presenting the Vedic scriptures in a language that one can understand and for making it accessible to every part of the globe. Just like how the sunlight reaches the darkest corners of the world, in the same way, the knowledge from your books reach impenetrable corners of the world. On this auspicious day, I bow down at your lotus feet and humbly pray for your guidance in this spiritual journey each and every moment to cross this ocean of material existence and reach the spiritual shore. Dandavat Pranam. All glories to Srila Prabhupada. Thank you. Hare Krishna. Thank you, Mataji. So यहाँ मैंने मेनली प्रभुपाद जी का बुक्स के बारे में लिखा हुआ है. जो भी बुक्स प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ है वो मेरा सबसे मूल्यवान चीज है, मूल्यवान बहुत चेरिश ट्रेशर्स एंड प्रेशियस बिलोंगिंग्स है. बुक्स का तो ये इट्स लाइक एन ओशन ऑफ नॉलेज. ये बुक्स तो इतना प्रभुपाद जी ने बहुत दिलचस्प है ये सब बुक्स, एंड इतना सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी ने लिखा है कि ये तो बहुत एडिक्टिव है. एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जितना पढ़ती हूँ मुझे उतना भी उतना जाने के लिए दिलचस्प हूँ. And और भी ज़्यादा it is an endless ocean in itself, ये सब books. And another thing, ये books is इतना languages में भी available है, and language भी इतना समझने के लिए actually easy है, and पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में कोने कोने में भी इसका बुक्स मिल रहा है. And I think the biggest thanks that I want to give is because Prabhupada ji has given Krishna, सबके लिए he has made Krishna available. And finally, मैं I want to take his blessings and उसका guidance मुझे चाहिए ये आध्यात्मिक जर्नी में, and हर क्षण में उसका guidance चाहिए इस भौतिक सागर को पार करने के लिए, एंड वहाँ वो स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक शोर जाने के लिए. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम. I again request my apologies because my Hindi is not that good. You've always been very kind. All of you have been very kind, but it's just coming from the heart, and I hope it's accepted. Hare Krishna. Thank you, Mata. Hare Krishna. Yeah, Jaya. Hare Krishna.
Hare Krishna, Prabhu. Thank you, Prabhu, first of all, for giving this opportunity. So I will also start with the prayers. Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gaur Vani Pracharine Nirvishesh Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityanand Shri Advait Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare. So about Prabhupada, I would like to say, so when I first read Prabhupada's small books, I instantly developed deep respect for the author. I developed high respect for Prabhupada and I felt this author is unique and I want to continue reading his content. Then I saw my Shiksha Gurus also asking all of us youth to read his books from all sides. We always got instructions to read Prabhupada books. I am always inspired by Srila Prabhupada. His never give up attitude, even after suffering 2 heart attacks at 70 years of age on a cargo ship voyaging to America, is really a big inspiration. Establishing 108 temples all over the world is again an inspiration. I am very much in awe of him. His books actually changed me as a person and my approach towards life. तो इसी सबको मैं हिंदी में बोलूंगी. जब मैंने पहली बार श्री प्रभुपाद की छोटी किताबें पढ़ी तो तत्काल ही मुझ में बहुत उनके लिए बहुत ही आदर भाव प्रतीत हुआ मेरे हृदय में कि ये जो लेखक हैं ये बहुत ही ये अद्भुत हैं और इंस्टेंटली मेरे अंदर उनके लिए बहुत आदर भाव प्रतीत हुआ श्रील प्रभुपाद के लिए. और मैंने सोचा ये जो लेखक है सबसे अलग है और मैं हमेशा इनकी किताबों को पढ़ने का अवसर चाहूंगी कि मैं पढ़ती रहूं. एंड फिर जब हमने देखा कि हमारे शिक्षा गुरु जो हैं वो भी वो चाहते थे हम सारे युवा इनकी प्रभुपाद जी की बुक्स से पढ़ें, इनकी किताबें पढ़ें. हर तरफ से हमेशा हमें यही निर्देशन मिला कि आप श्रील प्रभुपाद की किताबें जरूर पढ़ें. और मैं हमेशा श्रील प्रभुपाद जी से उनसे प्रेरणा लेती हूँ. मुझे वो बहुत प्रेरणादायक लगते हैं और उनका जो नेवर गिव अप एटीट्यूड कि कभी न थकने वाला एटीट्यूड. जब उन्होंने 2 हार्ट अटैक से वे गुजरे 70 साल की उम्र में भी एक कार्गो शिप में जब वे अमेरिका की तरफ जा रहे थे, वो अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है मेरे लिए. और ये भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि 108 मंदिर पूरे विश्व में बनाना वो भी बहुत बड़ी प्रेरणा है. मेरे मन में उनके लिए बहुत आदर भाव बनता है. और his books actually changed me as a person and approach towards life. तो ये प्रभुपाद की ही किताबें थी जिन्होंने मुझ में एक व्यक्तित्व का बदलाव लाया और मेरा जो अप्रोच था नजरिया था जिंदगी को लेके उसको बदला. थैंक यू श्रील प्रभुपाद. थैंक यू प्रभु जी फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी. हरे कृष्ण. Hare Krishna. Thank you, Jaya. And Megha Mataji. जैसे जैसे अपना हो जाता है नंबर प्लीज अपना हाथ भी नीचे कर लीजिए. कैन देन बैलेंस को हम लोग चांस कर सकते हैं. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा माता जी. दंडवत प्रणाम. My dear Srila Prabhupada, please accept my humble obeisances at your lotus feet. All glories to you. All glories to Guru and Gauranga. Since I joined Krishna consciousness, it has changed my life totally, whether in terms of thought or activities. Only one thing reminds me again and again, how could I get this mercy, even being so fallen? At the same time, I think how it would be more advantageous if I were joined this movement at the early stage of life. Still, I am feeling so blessed that I am part of Krishna Consciousness Family Society. I want to be flourished myself in Krishna Consciousness movement so that as I got your mercy, as others also receive it, so that they also come out from darkness of material world to the light of knowledge, that is Krishna consciousness. Since now I realize one thing, that there are only
only difficulties in our life until and unless we are Krishna consciousness. Being Krishna consciousness, life seems to be easier than earlier. Prabhupada, in your lecture, you repeat many times that this material world is dukhalyam asasvatam. But you gave us formula how to lead our life without being affected by material problem and to be situated in a state of Satchitanand. Sometimes I feel so embarrassed that you sacrifice your whole life to give us Krishna consciousness, and I am not giving single effort to take up this precious jewel. Please, Prabhupada, please bless me so that I can practice Krishna consciousness seriously in this short span of life. Your insignificant servant, Megha Gupta. Krishna, thank you, Megha Mataji. Hare Krishna, Prabhuji. Aparna Mataji. हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु, हरे कृष्णा, गोपी मनोहर प्रभु। एक्चुअली आई हैव आल्सो रिटन इन इंग्लिश, तो मुझे भी ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। प्रभुपाद के आपका चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances unto your lotus feet। श्रील प्रभुपाद की जय। Prabhupada has created the ISKCON society, where all the materialistic people who are taking shelter and becoming devotees and blessed by Prabhupada. It is because of Prabhupada we are able to read Bhagavad Gita and Bhagavatam, Ocean of Knowledge. These two books are really ocean of knowledge, from where we can get knowledge about Lord Krishna and his pastimes, and all these books are really treasure house of bhakti and Hindu Sanatan culture. Prabhupada has shown us the path of devotion and how to surrender to God and be happy. This world is full of miseries, and Prabhupada has shown us, in spite of all the miseries and performing all the materialistic duties, how to surrender to God and render service to God and be happy. Prabhupada has also given us the knowledge that we all are Krishna Das and not we all are Krishna Das. We should lead a simple life and have high thinking. And we should perform all our duties and always render service to Krishna, and then we can only go back to Godhead, our real home, Golak Dham. Devotee association, where we can discuss, it is because of Prabhupada that we are into devotee association, where we can discuss about Lord and help about Lord, and we should never have pride. All these qualities we should acquire, Prabhupada has shown us. And one thing is that अगर प्रभुपाद ना होते तो क्या होता? ये जो है line, it is very important. प्रभुपाद ने जो इस्कॉन सोसाइटी एस्टेब्लिश किए, बनाए, तो इधर सब कोई मेटेरियलिस्टिक पीपल जो आते हैं, जो वर्ल्डली पीपल है, वो सब शेल्टर लेते हैं, एंड धीरे धीरे हम सभी डिवोटीज बन जाते हैं, एंड आफ्टर दैट वी आर रियली ब्लेस्ड बाय प्रभुपाद। एंड प्रभुपाद के लिए ये सब संभव हुआ, एंड प्रभुपाद जो गीता भागवतम जो हम लोग फॉलन सोल्स के लिए सब लिखे हैं, तो ये जो बुक्स हैं हम लोग को बहुत ही दिशा देते हैं कि कैसे हम लोग को भगवान के शरणागत होना चाहिए। एंड प्योर डिवोशन इज अनन्य भक्ति, हाउ टू डू अनन्य भक्ति विदाउट एनी मटेरियलिस्टिक
क्रेविंग्स, दैट मीन्स कोई भौतिक कोई डिजायर नहीं रखने का नहीं है, और सिर्फ भगवान को अपना सब कुछ समर्पण करना चाहिए. ऑल दिस वी लर्न फ्रॉम प्रभुपाद, हिज बुक्स, हिज वर्क्स. और प्रभुपाद हम लोग को जो बताए हैं, वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज, और ये जो दुखालय अशतम हम लोग का जो ये जो दुखालय है, इसमें से हमें कैसे निकालना चाहिए, कैसे हम इसको पार करेंगे, तो इसके बारे में प्रभुपाद के बुक्स में से ही हम लोग को सभी नॉलेज मिलता है. तो और सबसे ये बात है कि ये डिवोटी एसोसिएशन प्रभुपाद के लिए संभव हुआ है, और इस्कॉन जो इतना बड़ा संस्थान है सारा विश्व में, ये प्रभुपाद के लिए संभव हुआ है. एंड जो और ये जो सिंपल लाइफ, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ये जो हमारा जीवन में होना चाहिए, ये जो चेंजेस, ये सब कुछ प्रभुपाद के लिए डिवोटीज के लाइफ में आता है. एंड वी शुड परफॉर्म ऑल द ड्यूटीज. लेकिन हमें सब ड्यूटीज परफॉर्म करने के बाद साथ साथ भी हमें हमेशा कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहना चाहिए. पर देन ओनली प्रभुपाद ये भी बताए हम लोग को कि ये सब करने से ही हम लोग गॉडहेड में हम लोग गोलोक धाम जा सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स चैंटिंग प्रभुपाद का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो हमें प्रभुपाद दिया है, बुक्स एंड चैंटिंग 16 राउंड का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इट गिव्स हैप्पीनेस एंड टू ऑल द डिवोटीज. थैंक यू गोपी मनोहर प्रभु जी, आपने ये जो अवसर दिया है. मैं तो बहुत ही मतलब सिर्फ 2 साल मेरा हुआ है इस्कॉन में, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू. आज मुझे ये अवसर मिला है. थैंक यू सो मच प्रभु. हरे कृष्णा. सभी माता जी प्रभु जी को धन्यवाद, प्रणाम. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. थैंक यू माता जी. थैंक यू वेरी मच. सानिका माता जी. हरे कृष्णा प्रभु. दंडवत. यस माता जी. प्रभु मैं दो मिनट दे दो, मैं करती हूँ. ओके. ठीक है. या सर्वदेव प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु. हरे कृष्णा. प्रभु जी, आरती माता जी ने प्रभुपाद जी के लिए ऑफरिंग लिख के भेजा हुआ है, बिकॉज उनका थ्रोट इन्फेक्शन है, उसके वजह से वो अटेंड नहीं कर पा रहे बोल के बोला है. वेरी गुड. ठीक है. तो कैन आई रीड और आई विल रीड आफ्टर? यस. नहीं प्रभु, आप पढ़ लो, तब तक सानिका माता जी रेडी हो जाएगी. या प्रभु. हरे कृष्णा. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. हरे कृष्णा. जय श्रील प्रभुपाद. मैं आपसे आपके जन्मदिन पर मैं आपसे सिर्फ यही मांगती हूँ कि और मैं कल से 16 राउंड चैंटिंग करूंगी और भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ूंगी. मैं कृष्ण भक्ति का प्रसार करने का कोशिश भी करूंगी. बस आपसे ऐसी आशीर्वाद बनाए रखने की मैं भक्ति में मैं ऐसे आगे बढ़ सकूं. जय श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा प्रभु. जय. थैंक यू प्रभु. थैंक यू आरती माता जी. ओके. सानिका माता जी रेडी? हरे कृष्णा प्रभु. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. प्रिय शिल प्रभुपाद, कृपया मुझ पर दया करें.
कि मैं किसी भी स्थिति और परिस्थिति में रहूं, दिन में कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करती रहूं और मैं 4 नियमों का सिद्धांत में से किसी भी कभी भी नहीं तोड़ पाऊं। मैं आपके चरण कमलों के बारे बार बार प्रार्थना करती हूँ कि मुझे अपने मन के चंगुल से मुक्त करे। हरे कृष्णा प्रभु। मैंने इतना ही लिखा प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा लिखा है, ये बड़ी बात है माता जी। थैंक यू। अलका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। नमो विष्णु पादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य Dear Srila Prabhupada, on this most auspicious day of your appearance day, please accept my humble obeisances at your lotus feet. All glories to Guru and Gauranga, and all glories to you. I have no any qualification to describe your transcendental qualities. Srila Prabhupada, due to your tireless effort, this Krishna consciousness movement has been spreading in every nook and corner. Your teaching and your instruction carried by your disciple and help others to take up Krishna Bhakti to everyone. This is the only movement can save humanity from going to hell. Our remembrance of you should be not only on your appearance day but also every day and at every moment of our life. Srila Prabhupada, I am most fallen soul. I am not following your instruction properly. I beg to you your boundless mercy so that I could follow your instruction nicely. Just you followed your Guru Maharaj's instruction, I could also follow my Guru Maharaj. Please give me a strength and intelligence so that I could read your book sincerely, chant 16 rounds nicely, and practice Krishna consciousness nicely. Your insignificant servant, Rupak Kumar. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू अलका माता जी। जीव पान प्रभु जी कुछ बोलना चाहेंगे? उनसे भी पूछ लो एक बार। तब तक सनातन प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। माता जी सनातन प्रभु जी ने भी हैंड रेस किया है प्रभु जी, प्लीज पहले उनको बोलने दीजिए। हरे कृष्ण। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू जीवपन गौर प्रभु जी, थैंक यू गोपी उमा प्रभु जी। आपने एक्चुअली आज ये स्पेसिफिक आज का दिन आपने सबको श्रील प्रभुपाद के बारे में बोलने के लिए जो आपने काइंड ऑफ कंपल्शन किया, वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आज जो दिल में प्रभुपाद जी के लिए जो हमारा प्यार है वो आज बाहर आ सकता है। एक्चुअली जैसे अलका माता जी ने बताया कि हम लोग की कुछ औकात नहीं है श्री प्रभुपाद के बारे में बात करने का, मतलब जुगनू कुछ अपना चमकना सूरज के सामने दिखाने जैसा कुछ है, लेकिन प्रभुपाद जी के बारे में बात करना मतलब खुद का शुद्धिकरण है, उनका ग्लोरिफिकेशन करना, उससे खुद का शुद्धिकरण है। और जो लोग प्रभुपाद जी को जानते नहीं, एटलीस्ट उनको तो पता चले कि कैसे एक महान कृष्ण के शक्तिवेश अवतार यहाँ पे होके गए। प्रभुपाद जी के बारे में बताना मतलब मेरी आज उम्र 53 है और मैं आज 53 एट द एज ऑफ 53 में आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग रिटायरमेंट फ्रॉम जॉब। और जिस एज में लोग नॉर्मली घर पे टाइम व्यतीत करते, घर वालों के साथ टाइम व्यतीत करते, उस उम्र में प्रभुपाद जी ने पूरे वर्ल्ड को रिवॉल्यूशनाइज किया। मतलब एक इम्पॉसिबल टास्क, और ये सिर्फ अवतार ही कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि मतलब क्या लेवल पे उन्होंने किया था, पूरा वर्ल्ड में रिवॉल्यूशन लाया है। आज प्रभुपाद जी ने जितने किताब लिखे हैं उनके 10 साल की उम्र में, तो शायद मैं पूरी जिंदगी भर भी पढ़ नहीं पाऊंगा। मतलब लिखना तो ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन मैं पढ़ने में जो कम टाइम लगता है उसमें पूरा मतलब उनका जो स्पीड है राइटिंग का, वो मेरे पढ़ने के स्पीड से कई ज्यादा है। तो और एक चीज मतलब हर बार मतलब नोटिस करता हूँ कि जब भी प्रभुपाद जी का मैं कोई भी
परपट पढ़ता हूँ और उसको दोबारा पढ़ता हूँ तो मेरे को नया कुछ ज्ञान मिलता है, और वापस पढ़ूंगा तो और पता चलता है कि और कुछ प्रभुपद जी कहना चाह रहे हैं। मतलब उनके कहने में वो जो तात्पर्य है वो इतना स्ट्रांग है, इतना पावरफुल है कि मतलब मेरी तो औकात ही नहीं है, बुद्धि भी उतनी नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, तो उसके लिए पहले इसमें मैं नहीं पढ़ समझ सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे 10 बार पढ़ना पड़ता है, तब कुछ जाके थोड़ा सा प्रभुपद जी जो कह रहे हैं पता चलता है। उसके बाद फिर मैं आचार्य से सुनता हूँ, इतने बड़े बड़े आचार्य जो है वो जब उस श्लोक का और तात्पर्य बताते हैं तब पता चलता है कि वो कितना मतलब गहन है प्रभुपद जी ने जो भी तात्पर्य बताया उनके बारे में। मतलब जितना हम लोग सुनते हैं एवरी टाइम इट इज जस्ट यू नो एक लेवल ऑफ ये तो एक ऑ फीलिंग जो रहता है वैसा एक फीलिंग रहता है उनके बारे में कि हाउ कैन अ पर्सन बी सो विटी। प्रभुपाद जी कभी भी किसी भी आदमी के सामने हारे नहीं। तो यहाँ पे एक बात पता चलती है कि जो आदमी सही है और जिसको एक्चुअली सच और झूठ का डिफरेंस मालूम है वो फिर किसी के सामने झुक नहीं सकता है, किसी के सामने हार नहीं सकता है। पूरे साइंटिस्ट के मतलब क्वेश्चन परफेक्ट आंसर्स में उन्होंने जो जिस तरीके से लोगों को आंसर दिया है, मतलब ऐसे लगता है कि क्या लेवल है एट दैट एज ही इज सो, मतलब उसका इंटेलिजेंस क्या लेवल की है। एब्सोल्युटली मतलब प्रभुपद जी सीरियसली क्या मतलब आपने जो किया है पूरे पृथ्वी के इंसानों पे, मनुष्य जाति पे, मनुष्य योनि पे आपने जो किया है वो शायद मतलब बहुत सारे संत आके गए हैं, बहुत सारे अवतार आके गए, सब लोगों ने एक अपने तरीके से सब ट्राई किया। अपने गुरु इतने पूरा इस्कॉन का गुरु वृंद है, उसने सब लोगों ने इतनी मेहनत की है, सब लोगों ने बहुत मेहनत की और सब लोगों ने आज हम लोग जिस लेवल पे है हम लोग को लाके छोड़ दिया है, हमको एक कंफर्ट जोन में लाके छोड़ दिया है। लेकिन आपने जो किया है वो एकमेव द्वितीय है, उसके जैसा कभी हो नहीं सकता है। पूरे वर्ल्ड को रिवोल्यूशनाइज करना, पूरे वर्ल्ड को, और एट द एज ऑफ 66 इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल टास्क को आपने इतना इजीली पॉसिबल कर दिया है। और आपने कितनी मेहनत की है, तो आज हम लोग घर के एसी में बैठ के, पंखे के नीचे बैठ के आपको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। कितने कंफर्ट जोन में है हम लोग। आपकी सभी किताबें हमारे हाथ में हैं, हम अपने टाइम से पढ़ते हैं, उसको देते ही नहीं है जितना मतलब उनका जितना आदर होना चाहिए, जितना जो रिस्पेक्ट होना चाहिए, हम लोग आज भी देते नहीं है। एब्सोल्युटली मतलब हम लोग इतने नीच है प्रभुपाद जी, मैं इतना नीच हूँ। प्लीज मुझे आप सीरियसली मुझे माफ कीजिए, आपकी आशीर्वाद मुझे कंटिन्यू रखिए मेरे पे। और मुझे आज भी याद है कि जब मुझे गुरु महाराज ने दीक्षा दी और मैं उनको दंडवत करके जब आपके सामने दंडवत किया था, तो आई वॉज एक्चुअली क्राइंग लाइक एनीथिंग। मतलब मैं तब पता चला कि मेरा जो एज 52 एज है जस्ट नॉट 50, पूरा वेस्टेज, सक्सेसफुल वेस्टिंग ऑफ 52 इयर्स आई डिड दैट। अभी जाके कुछ मुझे पता चल रहा है कि मेरा लाइफ का एम क्या है एंड व्हाट इट इज। थैंक यू वेरी मच प्रभुपाद जी, एब्सोल्युटली थैंक यू टन्स। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट जो बोलते हैं, आई वुड लाइक टू थैंक वन मिस्टर नारद मुनिदास whom I met at the age of 20 at Miraj railway station, and who told me the path to ISKCON, because of whom I came to know about ISKCON. और उस दिन से मैं ISKCON में जाने का प्रयास करने लगा था। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गोपी मनोहर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। कौन प्रभु? जस्ट ए मिनट, रागिनी तुम्हें भी बोलना है या यूर ड्राइविंग? प्रभु जी वो ड्राइव कर रहे शायद, वो घर पे जाके देन वो बोलेंगे, ऐसा बोला हुआ। ओके ठीक है या जी। कौन प्रभु? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी के चरणों में। साधु साधु, वैजंती माता जी, जया माता जी, मेघा माता जी, बाद में अपर्णा माता जी, सानिका माता जी
और अलका और सनातन निताय प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से श्रील प्रभुपाद जी के गुणगान किए। मैं एक्चुअली अपने आप को अयोग्य समझता हूँ, क्योंकि एक तो मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था और मुझसे सही तरह से आज साधना भी नहीं हो पाई है। तो लेकिन ये जो अपने शुद्धिकरण के लिए और आप सबकी प्रसन्नता, आपकी कृपा के लिए थोड़ा ये प्रयास करता हूँ। श्रील प्रभुपाद जी के बारे में थोड़ा सा शुद्धिकरण, अपनी शुद्धिकरण के लिए उनके गुणगान गाने के लिए प्रयास करता हूँ। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुलं वैतेगिरिं यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरं कथञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृतिं विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि प्रभु। जय श्रील प्रभुपाद। मेरा आदरणीय दंडवत प्रणाम आपके चरणों में और सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी के इस व्यास पूजा के उपलक्ष्य में मैंने ये कुछ दिनों से ऐसा स्मरण में आ रहा था कि जो श्रील प्रभुपाद जी कई बार अपने प्रवचन में और तात्पर्य में भी ये बताते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। यू डू दिस योर लाइफ विल बी सक्सेसफुल। ऐसा कई बार प्रभुपाद जी ने उल्लेख किया है। मतलब सभी जो भी अलग अलग प्रसंगों में उन्होंने उल्लेख किया है, उन सबका एक जो केंद्र समान अर्थ एक ये होता था कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सेवा और उनको ही समर्पित सेवा, और जो उनके ही चरणों में जो समर्पित है, उनके आज्ञा को समर्पित होके जो करता है सेवा, वो जो करने से है वो तो उनका जीवन जो है वो सफल बनेगा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जिनमें से अलग अलग शिक्षाएं उन्होंने अपने तात्पर्य के माध्यम से और प्रवचन के माध्यम से दिए हैं। तो एक जस्ट मैं ये श्रीमद् भागवतम में से और भगवत गीता में से 2 श्लोक है, वो श्लोक के ही मतलब साथ में लेके मैं एक जो मैंने आज ही अभी श्रीमद् भागवतम में गौरांग प्रभु से सुना था, वो साथ में जोड़ के ये जो भाव जो मेरे मन में था वो आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूँ। श्रीमद् भागवतम में व्यास जी को नारद जी जब अपना पूरा बताते हैं और नारद जी जब भी उनको सब बता के उनको जब भी व्यास जी को ये भगवान के बारे में वर्णन करने को कहते हैं, तो उसमें एक श्लोक बहुत अच्छा आता है 1634। उसमें मैं अनुवाद पढ़ता हूँ। यह मेरा निजी अनुभव है कि जो लोग विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो नारद जी है वो व्यास जी को बता रहे हैं कि ये मेरा निजी अनुभव है। जो ये विषय वस्तु हैं उनसे संपर्क रख के वो सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, लेकिन यदि वे भगवान के दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। तो वो यदि भगवान के दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन, तो ये जो है ये यदि हम देखने जाए तो यही जो श्रील प्रभुपाद जी है, ये श्रील प्रभुपाद जी ने ये करके दिखाया। और केवल उन्होंने किया ही नहीं, ये जो नौका है वे उन्होंने सबके लिए नौका बना के दी। और जस्ट ऐसे अभी जो इस ग्रेस गौरांग प्रभु बता रहे थे कि जो पाश्चात्य देश है वहाँ पे भी जो उन लोग को ये अर्च विग्रह की सेवा के बारे में भी कुछ पता नहीं था, तो वहाँ पे भी प्रभुपाद जी ने वहाँ पे स्थापना की।
वो प्रभु जी बता रहे थे कि उन्होंने अफ्रीका में एक देश में राधा श्याम सुंदर, ये ऐसा उनका नाम है अर्च विग्रह का, उनको वहां पे स्थापना किए थे। तो वहां पे अफ्रीका के देश में क्या है, वो डकैत लोग आ जाते हैं, तो वो मंदिर में आ गए, तो वो पुजारी तो भाव से भगवान की आरती कर रहे हैं, तो डकैत ने वो पुजारी के सर पे वो बंदूक रख दी, और वो पुजारी फिर भी भाव से कर रहे हैं। तो वो डकैत ने पूछा ये क्या कर रहे हो, तो बोलते ये हमारे भगवान है, मैं भगवान की आरती उतार रहा हूँ। अच्छा। तो फिर बाद में उन्होंने देखा उनके बाजू में वो जो भगवान श्याम सुंदर थे वो श्याम वर्ण में थे, और उनके बाजू में राधा जी थे। तो उन्होंने बोला ये इनके बाजू में है वो कौन है, तो बोलते हैं वो हमारे भगवान के पत्नी है। सोचते अच्छा। फिर वो डकैत लोग बोले अरे चलो यहाँ से छोड़ दो, ये इनके भगवान काले हैं और इन्होंने भी गोरी पत्नी को ये साथ में रखे सेवा करने के लिए, इसके लिए इनको छोड़ दो, हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, चले जाएंगे। तो ऐसा वो लोग फिर वहां से छोड़ के चले गए। फिर वो प्रभु जो एक बार कमल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी बस की जो कीर्तन पार्टी थी उसमें भी जा रहे थे, तो वहां पे राधा दामोदर जी का जो ऐसा 1 फुट जैसा अर्च विग्रह था, तो वो बस में मंगला आरती कर रहे थे। तो वहाँ अचानक से पुलिस आ गई, और पुलिस ने बताया ये आप क्या कर रहे हो, हमें किसी ये महिला ने ये कंप्लेन किया कि आप लोग ये आग से 2 बच्चों लोग को बस में ऐसे डरा धमका रहे हो, लेकिन वो वास्तविक था, वो वहां पे आरती कर रहे हैं वो भगवान की। तो मतलब प्रभुपाद जी की कृपा से जहाँ पे भी ये अर्च विग्रह की स्थापना नहीं थी, जहाँ पे कुछ ज्ञान नहीं था, वहां पे भी जाके आज भगवान श्री कृष्ण की अर्च विग्रह पूजा विधि सब होती है। तो ये जो प्रभुपाद जी की कृपा से यहाँ पे सब जगह प्रचार हो रहा है, वो केवल और केवल प्रभुपाद जी की, जैसे व्यास देव जी को नारद जी ने कृपा करके उनको प्रेरणा दी, और न केवल प्रेरणा दी, उनको ज्ञान भी दिया और मार्गदर्शन भी दिया, वैसे प्रभुपाद जी की कृपा से हमें उनके शिष्यों के द्वारा बहुत सारा उनका ज्ञान मिल रहा है, और किस तरह करना वो भी हमें उनसे प्रेरणा और जो शक्ति होती है वो भी उनसे प्राप्त हो रही है। लेकिन मेरे जैसे जो है आलसी मूड, वो लोग उसको सही तरह से पालन नहीं कर पा रहे। और इसमें एक ये श्लोक था भगवत गीता का 4.34, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। इसमें अनुवाद प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जय श्रील प्रभुपाद, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो यहाँ पे भी जो बताते हैं वो प्रभुपाद जी का अभी एक जो रिसेंटली अभी हाल ही में जो चंद्रयान 3 जो उतरा, तो उसके बारे में भी मेरे मन में भी एक बहुत बड़ा ये एक प्रश्न चिन्ह था कि क्या ये वास्तविक होगा कि चंद्रयान पे, चंद्रलोक पे वो चंद्रयान उतर गया, क्योंकि तो हमारी अपूर्ण इंद्रिया है। फिर मैंने कुछ भक्तों से भी पूछा, तो सबसे ऐसा ही जवाब मिला कि ये मतलब श्रम ही है, श्रम एवं केवलम ही है। लेकिन फिर भी एक तरह से ये हो रहा था। फिर मैंने अभी कल ही एक वो वीडियो देखा था इस ग्रेस अमोघ लीला प्रभु और इस ग्रेस चैतन्य चरण प्रभु जी का, तो उनमें से बहुत अच्छी तरह समझने मिला कि प्रभुपाद जी ने अलग अलग प्रसंगों के माध्यम से ये चंद्र के बारे में अपनी टिप्पणियां दी है। तो ये हमारे पे है कि उनकी टिप्पणियों को हम कैसे समझे। कि प्रभुपाद जी ने कहीं पे ऐसा भी कहा है कि वो चंद्रयान पे जाना वो एक तरह से वो वहम था या अफवाह हॉक्स थी, या प्रभुपाद जी ने कहीं पे, जैसे इस ग्रेस चैतन्य चरण प्रभु जी ने बहुत अच्छा रेफरेंस देके भी बताया, उन्होंने ऐसा भी बताया कि वहां पे गए तो हैं लेकिन वो सही तरह से वहां पहुंच भी नहीं पाए, या जैसे वो इमिग्रेंट होते हैं, वो एक देश में से दूसरे देश में जाते हैं तो वहां उनको वीजा पासपोर्ट बाद में एंट्री मिलती है, लेकिन वो लोग ऐसे ही घुस जाते हैं तो उनको एक साइड पे रखा जाता है। तो वैसे उनको कहीं पे वो वहां उतारा गया।
तो ऐसे अलग अलग प्रभुपाद जी ने वो वहाँ पे अलग अलग जो प्रसंग है उसके हिसाब से टिप्पणियां दी है। तो उसी तरह यहाँ पे जो बताया जा रहा है, ये भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं, वो तत्वदर्शिना मतलब उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो प्रभुपाद जी ने एक तो स्वयं जो है वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है और वे हमें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो ये जो सत्य है वो प्रभुपाद जी अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग जो ये उस प्रसंग को लेके वो बताते हैं। तो अब हमारे पे है कि हम उसे यथारूप कैसे ग्रहण करें और उस परिस्थिति में उसका कैसे उसका ये एप्लीकेशन करें, अमल करें, ताकि जो है हम जो इस ग्रेस चैतन्य चरण प्रभु जी ने भी बहुत अच्छा बताया कि वो मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम उसको मतलब यही कि नहीं प्रभुपाद जी ने बताया है कि वहां पे कोई जा ही नहीं सकता चंद्रलोक पे, तो वो गलत है, कि हम वैसा भी ना समझे और वैसा भी ना समझे कि ये वहां पे गए हैं और मतलब प्रभुपाद जी को तो ये मतलब ये आज की ये नई वैज्ञानिक संशोधन है उसके बारे में पता नहीं, इसके लिए तो हम क्या है प्रभुपाद जी से हमारा जो नाता है वो टूट सकता है और हम गिर सकते हैं। तो हम प्रभुपाद जी से जो इस ग्रेस चैतन्य चरण प्रभु जी ने इंग्लिश में बताया कि हमें वो एब्सोल्यूटाइज भी नहीं समझना है, मतलब हम प्रभुपाद जी ने बोला कि वहां नहीं जा सकते वो तो गलत है, ऐसा भी नहीं। और वो क्या था रिजोल्यूटाइज ऐसा कुछ तो और एक वर्ड था, तो उस तरफ भी नहीं समझना है कि ये मतलब ये नहीं भी हो सकता है, तो हम उनका जो ये संपर्क है हमारा वो टूट जाएगा। प्रभुपाद उन्होंने बोला है कंटेक्चुअलाइज मतलब जो प्रसंग है उस प्रसंग के अनुसार प्रभुपाद जी की जो आज्ञा है उसे हम समझे और अपने जीवन में उस प्रसंग की आज्ञा है उसका अमल करें। तो इस संदर्भ में भागवत कथा में इस ग्रेस गौरांग प्रभु जी आज ही सुन रहा था, तो उन्होंने बता रहे थे कि उन्होंने जब यहाँ पे गोवर्धन इको विलेज का निर्माण कर रहे थे तभी उनको प्रभुपाद जी की ऐसी आज्ञा थी कि उनको न्यू वृंदावन बनाना है और वहाँ पे जो वृंदावन के 12 वन है और 5 प्रमुख मंदिर है उनकी स्थापना हो। तो किसी तरह से वहाँ पे जो न्यू वृंदावन बना था यूएसए में, वहाँ पे प्रभुपाद जी का वो सुवर्ण मंदिर तो बन गया, तो वो बहुत ही प्रख्यात हुआ। लेकिन फिर उसके बाद जो वहाँ के जो सेवाधारी भक्त थे उन्होंने फिर प्रभुपाद जी की आज्ञा का पालन नहीं किया। फिर उन्होंने सोचा कि हम इसे यहाँ पे कुछ अलग बनाते हैं, देवताओं का शहर या ऐसा कुछ। तो हुआ ऐसा कि वो कुछ समय के बाद वही इस्कॉन से बाहर हो गए। तो फिर हिज होलीनेस परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी ने बहुत प्रयास किया वहाँ पे, लेकिन किसी कारणवश वहाँ पे नहीं बन पाया। फिर उन्होंने यहाँ पे जो था ये जो वाड़ा बम्बई के पास है वाड़ा, वहाँ गोवर्धन इको विलेज का निर्माण का जब उन्होंने बीड़ा उठाया तो यहाँ पे श्री श्री राधा गोपीनाथ जी मंदिर से अलग अलग जो काउंसिल ग्रुप के हैं श्रीनाथ जी प्रभु और अलग अलग कई भक्त हैं, उन्होंने मिलके ये जो इसका निर्माण कार्य पूर्ण किया। और फिर जब निर्माण कार्य हो रहा था तो इस ग्रेस गौरांग प्रभु जी परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी को उनका सब ये अपडेट देते थे, ये आज इतना हुआ है, ये निर्माण हुआ, ये निर्माण हुआ है। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी ने बताया कि मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे जो है हम ये सब तो कर ही रहे हैं, जो ये 12 वन 5 प्रमुख मंदिर और वृंदावन जैसा ही हम वहाँ बना रहे हैं, लेकिन उसका जो था वो 5 प्रमुख उद्देश्य था। एक तो वृंदावन जैसा वो बनना, फिर जो कृषि के बारे में वहाँ पे बनना, फिर गायों की रक्षा बने, फिर वहाँ पे जो ये शिक्षण हो और वहाँ पे जो ये गेस्ट हाउस जैसा हो जहाँ बाहर के लोग आके वहाँ रह सके, तो ये बने। तो फिर महाराज जी ने गौरांग प्रभु को कहा कि मैं चाहता हूँ कि जो, क्योंकि उस समय जब भी प्रारंभ में इस्कॉन के प्रारंभ में तभी इस्कॉन में 5000 शिष्य थे श्रील प्रभुपाद जी के, और उसमें केवल 20% ही भारतीय शिष्य थे। तो उस समय बहुत सारे विदेशी भक्त थे, लेकिन कुछ समय बाद उसमें
बदलाव आया और उसमें भारतीय भक्त बढ़ गए और विदेशी भक्त कम हो गए। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी की इच्छा थी कि जो विदेशी भक्त है उनको आकर्षण हो। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि उनको क्या है कि पशु प्रेम में बहुत ही रुचि होती है, तो वे चाहते थे कि यहाँ पे भी पशु प्रेम की उनको झलक मिले। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, यहाँ पे एक घोड़ा पालिए, कुत्ता पालिए, और क्या, हाँ, और फिर और ऐसे प्राणियों का नाम कहा और लास्ट में कहा कि आप यहाँ पे गधा भी पालिए। तो गौरांग प्रभु बोल रहे थे कि गधा पालने को क्यों कह रहे हैं, ऑलरेडी मैं एक गधा तो हूँ, ऐसा वो बोल रहे थे। लेकिन वो बोल रहे थे ऐसा गधा पालने को क्यों कह रहे हैं। तो महाराज ने कहा कि नहीं, आपको गधा पालना है। तो गौरांग प्रभु बोल रहे थे कि हम लोग किसी ना किसी तरह से वो उसको टाल रहे थे, मतलब अभी नहीं, कुछ दिन कुछ बाद में ऐसे ऐसे करके महाराज को टाल रहे थे। फिर वापस जब भी वो महाराज को रिपोर्ट बताते थे तो महाराज उनको बोलते थे कि आपने गधा लाया। तो उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, अभी नहीं लाया। तो उन्होंने बोला पहले गधा लेके आओ। तो फिर बाद में गौरांग प्रभु ने जाके गधा का व्यवस्था करवाया वहां पे, और वहां पे दो गधों को रखा। तो महाराज ने उनको कहा मैं जानता हूँ कि आप गधों को लेके ये चिंतित है कि वो निंदनीय है, इसके लिए आप उनको पालने को मना कह रहे, लेकिन आप उधर उनको पालिए उधर। तो उनको उधर पाला और फिर वो फिर जब वहां पे गए महाराज तो देखा तो वहां पे गधा था, और फिर महाराज को देख के वो भाग गया। तो फिर गौरांग प्रभु को देख के वो बोले कि क्यों भाग गया। तो बोलते है पता नहीं महाराज। तो उन्होंने कहा क्योंकि ये जो इसके पहले जिनके यहाँ था वहाँ उसने बहुत अत्याचार सहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे उनकी सेवा करो, उनकी मालिश करो। तो गौरांग प्रभु भी एकदम अचरज में आ गए, भक्त भी सब वहां पे थे, अचरज आ गए, अभी ये कौन करेगा, गधे की सेवा कौन करेगा। तो फिर गौरांग प्रभु ने कहा ठीक है, उसकी भी व्यवस्था कराई कि और किसी एक व्यक्ति को वहां पे रख के वो गधे की अच्छे से सेवा कर रहा था। फिर हुआ यूं कि कुछ दिनों बाद जो ये अंतर्राष्ट्रीय योगा संस्था थी एक अमेरिका की, वहां से कुछ लोग आए यहाँ पे उनका वो कार्यक्रम करने के लिए। तो उनकी जो प्रमुख थी उसने देखा कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने सब देखा और उनका ध्यान गया ये गधे जहाँ रखे थे ना, वहां उनका ध्यान गया और उन्होंने देखा ये लोग क्या कर रहे हैं। तो बोल रहे ये लोग गधे की सेवा कर रहे हैं। तो ये देख के उनको बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि वो सब प्राणी से बहुत प्रेम करते थे। तो बोलते यही तो हमारा हेतु है, हम सभी जीवात्माओं मतलब प्राणी से भी हम प्रेम करते हैं। तो ये हमें देख के बहुत अच्छा लगा। अभी हम प्रति वर्ष यहाँ आके ये जो हमारा कार्यक्रम है योगा का वो यहाँ आके ही करेंगे। तो ये जो थी ये मतलब परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी की दीर्घ दृष्टा थी, जो मतलब और जो गौरांग प्रभु बता रहे थे कि हम नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन ये जो उन्होंने कहा था कि जो विदेशी भक्तों को भी आकर्षण करना है, तो इसके लिए ये सब उन्होंने पहले से ही ऐसा उनको समझ में आया था। इसके लिए उन्होंने कहा कि ये गधे को रखो, तो इससे ही उनका मतलब वो आकर्षण होगा। तो जो उन्होंने कहा था वैसा उन्होंने किया। तो उस समय में तो उनको नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन बाद में जाके उनको समझ में आया, तो ये इस तरह से उसका प्रचार हुआ। और गौरांग प्रभु बोल रहे थे कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये तो हमारे मार्केटिंग के सीईओ है, वो गधा तो सीईओ है हमारे मार्केटिंग के, ऐसा करके उन्होंने भागवत कथा में कहा। तो इससे मतलब मैंने ये इसलिए इसमें ऐड किया कि जो प्रभुपाद जी ने जो हमें बहुत सारी ऐसी उनके तात्पर्यों में हमें उनकी आज्ञा मिलती है, उनका जो ये निर्देशन मिलता है, तो हो सकता है कि मतलब मुझ जैसे जो होंगे उनको ऐसा नहीं समझ में आए, लेकिन यदि उसे थोड़ा सा हृदय में ये अपनाएंगे और उसके जीवन में मतलब पालन करने का प्रयास कर सकूं, ऐसा मैं प्रभुपाद जी की इस व्यास पूजा में प्रभुपाद जी से ये याचना करता हूँ और सभी भक्तों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी बुद्धि दे कि प्रभुपाद जी की जो आज्ञा है, जैसे परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी, जो प्रभुपाद जी मतलब कुछ ऐसे सिर्फ ऐसे आंख ही ऐसा करते थे, तो उसमें परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी सब समझ जाते थे कि क्या चाहिए प्रभुपाद जी को। और यहाँ पे गौरांग प्रभु का भी ऐसा है कि जब भी परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी को कुछ ऐसे बैठे हैं और उनको कुछ ऐसे चाहिए, सिर्फ देखा और उसमें ही गौरांग प्रभु जी को समझ में आ जाता था कि क्या चाहिए महाराज को।
तो उस तरह का ऐसा समझदारी बुद्धि मिले, ऐसी सभी भक्तों के चरणों में प्रार्थना। आप आशीर्वाद दीजिए कि प्रभुपाद जी के इस व्यास पूजा में इतने साल हो गए और प्रभुपाद जी ने जो दिया अभी हम उनके लिए कुछ कर पाए, ऐसा हमें बल मिले। और यही कह के मैं यहाँ विराम करता हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। या रागिनी, हरे कृष्णा। रागिनी, आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। यस, सॉरी प्रभु जी, थोड़ा सा लेट हो गया। नो प्रॉब्लम। प्रभु मैं स्टार्ट करूं? यस, स्टार्ट। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इते नमे। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चाताय देशतरीणे। हरे कृष्णा। डियर प्रभुपाद, फर्स्ट थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मैं इस्कॉन से जुड़ पाई हूँ। इस्कॉन से जुड़ने के बाद बहुत सारे चेंजेस आए हैं, वो सब आपकी कृपा से हो पाया है। आपकी कृपा से मुझे भक्तों से मैं बहुत सारे भक्तों से मिल पाई हूँ और मुझे साधु संघ ग्रुप से ऐड हो पाई हूँ। और वहाँ के मुझे बहुत सारे भक्त मिले हैं। ये सब आपकी कृपा से और बाकी सारे साधु संघ के भक्तों की वजह से हो पाया है। आपकी कृपा से सीनियर डिवोटी गोपी मरण प्रभु जी मुझे मिले हैं। मुझे हरे कृष्णा। पहले हाँ, आवाज नहीं आ रहा। सॉरी प्रभु जी। प्रभु मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। ठीक है, चल। ठीक है, यू टेक योर टाइम। तब तक वेरी नाइस। तुम्हारे ये जो अश्रु है यही प्रभुपाद जी को ऑफरिंग है बेटा। प्रभुपाद जी से बहुत खुश होंगे। बोलना चाहती हूँ। ठीक है, चल, विल वेट फॉर यू। नहीं प्रभु जी, मैं बोल सकती हूँ, मैं बोल रही हूँ अभी। ओके, कंटिन्यू। सॉरी प्रभु जी। वहां पे मुझे गोपी मरण प्रभु जी मिले। उन्होंने मुझे 16 राउंड हर रोज करने के लिए कहा, बट वो मुझसे नहीं हो पा रहा था। मैंने हर रोज ट्राई किया,
बट एक दिन हो गया, उस दिन से मैंने हर रोज 16 राउंड माला चंटिंग करना स्टार्ट किया। और थैंक्स टू सर्वदेव प्रभु, उन्होंने ही मुझे साधु संघ ग्रुप में ऐड करवाया। उनकी वजह से आज मैं इस सारे भक्तों से मिल पाई हूँ। ये सब आपकी कृपा से हुआ है प्रभुपाद। प्लीज मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं भक्ति में और आगे बढ़ सकूं। प्रभु जी, एक्चुअली मुझे ये सब कुछ नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ लिखना पड़ता है। आज ही मुझे सर्वदेव प्रभु जी ने बताया ये सब कुछ कि ऐसा ऐसा करना पड़ता है। तो थैंक यू सो मच सर्वदेव प्रभु जी, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है। मुझे नहीं पता मैं कैसे रो रही हूँ, बट प्रभु ये सब ऑटोमेटिकली हो रहा है। यही जो है भगवान तुम्हारे प्रभुपाद जी के प्रति जो तुम्हारा भावना है, वही प्रेम जो है यही आ रहा है। सो इट्स अ नाइस सिम्टम। थैंक यू रागिनी, थैंक बहुत यू जल्दी प्रभु जी। तुम्हारा भक्ति में प्रगति होगी। थैंक यू बेटा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रागिनी, प्रभुपाद जी का आशीर्वाद मिला तो ऐसे लग रहा है बहुत अच्छा भाव है तुम्हारा, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। आज ही मैं दोपहर को ना इस्कॉन जूहू का लाइव देख रही थी, तो वहाँ के एक प्रभु जी भी अपना मतलब व्यास पूजा के बारे में ही बता रहे थे। वो भी अपना लेटर पढ़ रहे थे, तो वो ऐसा बता रहे थे कि जो फर्स्ट टाइम आते हैं इस्कॉन, जिनको इस्कॉन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, वो वहाँ पे आते हैं, प्रसादम लेते हैं, बुक्स परचेज करते हैं, फिर वो उसके बाद ऑटोमेटिकली अपने आप फिर से आने लगते हैं और वो बार बार इस्कॉन में आते हैं। फिर ऐसा जैसे वो एक कोई बिजनेसमैन होता है ना कि अपना प्रोडक्ट कोई सेल करता है, तो ऐसा मतलब कस्टमर, वो बता रहे थे कि कस्टमर अगर बार बार आने लगे तो ऐसा समझिए कि आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गया है। तो मैं भी वैसा ही कुछ हूँ प्रभु कि मुझे पता नहीं था कुछ भी इस्कॉन के बारे में। मैं सडनली एक दिन यही था, जन्माष्टमी था, उसी दिन मैं फर्स्ट टाइम गई थी इस्कॉन जूहू में। उसके बाद से मैं मतलब हमेशा जाने लगी, बट मुझे इतना कुछ भी नहीं पता था। जब से मैं आप लोगों से जुड़ी हूँ, सर्वदेव प्रभु जी ने मुझे बहुत गाइड किया है, बहुत कुछ बताया है उन्होंने। आप लोगों की वजह से ही और श्रील प्रभुपाद की वजह से ही मुझे इतना मतलब जो भी कुछ पता चला है वो आप लोगों की वजह से ही है। हरे कृष्ण। प्रभु जी का हरे कोई कृष्ण। मिस्टेक है तो प्लीज। हरे कृष्णा। थैंक यू रागिनी। राकेश जी की जय, की जय। हम लोग प्रे करेंगे, ऐसे ही तुम भक्ति में आगे बढ़ो। और हमारे जो इमोशंस हैं बहुत जरूरी है, हम लोगों को भक्तों के प्रति, प्रभुपाद जी के प्रति होने चाहिए। और ये जब होता है तो ही हम लोग भक्ति में आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग इमोशनलेस हैं, हमारा कोई इमोशन ही नहीं है भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति, तो फिर हम लोग कैसे आगे बढ़ें। प्रेम का मतलब ही होता है कि देयर आर इमोशंस। सो यू हैव वेरी नाइस इमोशंस। थैंक यू रागिनी। तो प्रभु जी। आई थिंक अभी और कोई बचा नहीं है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ अभी। हरे कृष्णा, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज प्रभुपाद जी के जन्म दिवस है, इसके अवसर पे कुछ ना कुछ बोल के अपने को शुद्ध करने का दिन है। तो जितने भी हम लोग प्रभुपाद जी के बारे में बोलेंगे उतना सब कम है। और इतने सारे जैसे प्रभु जी ने कहा अभी कि प्रभुपाद जी ने, व्यास देव जी है हमारे, और इतने सारा लिख के रखा है। हर एक प्रश्न का उत्तर है इस सब में, अगर हम ढूंढने जाएंगे तो। और इतने सारे हमारे आने वाले प्रश्न जो पहले से है, उन सब का है। हम
हमें किस तरह भगवान के पास जाना है वो सब लिख के रखा। और जैसे प्रभुपाद जी ने व्यासदेव जी के जैसा सब लिख के काम किया है, वैसे ही जो भगवान का जो अवतार है, हम कितनी भी प्रेयर्स करें शायद कृष्ण बलराम हमारी ना सुने, राधा श्याम सुंदर हमारी ना सुने, उनके पास हमारी प्रेयर नहीं जा सकती। लेकिन जो छुपा हुआ अवतार है भगवान का, चैतन्य महाप्रभु, वो प्रभुपाद जी ने इतना उसे स्पॉटलाइट पे डाल के सब देशों में सब जगह इतना फैलाया और इतना महाप्रभु के प्रति हम सबके लिए सबके मन में प्रेम जागृत किया ताकि हम लोग भगवान के धाम आसानी से जा सके। तो इसके लिए प्रभुपाद जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। यही बोल के मैं यहाँ पर हरे कृष्णा। और प्रभुपाद जी का और एक बात के लिए बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने ये जो किया है कि साधु संग करके, तो जब हम लोग सब भक्त एक साथ जुड़ते हैं और उनके साथ हम लोग जब कुछ पढ़ते हैं, कुछ अभ्यास करते हैं, तो उसकी वजह से हमें बहुत सारे जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर भी मिल जाते हैं और हमारी भक्ति और अच्छे से आगे बढ़ती है। तो उसके लिए भी प्रभुपाद जी का दिल से धन्यवाद। उन्हीं की वजह से आज इतने सारे लोगों से हम जुड़ पाते हैं। और सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। थैंक यू एवरीबॉडी और बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सभी ने अपना ऑफरिंग लिखा और पढ़ के सुना। थैंक यू वेरी मच। हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। मैं सिर्फ यहाँ पे और 2-4 मिनट लेना चाहता हूँ। हम लोग अगर प्रभुपाद जी को हम लोग थोड़ा सा, सबके घर में अपने पास प्रभु जी को फोटो होगी, तो हम लोग प्रभुपाद जी को हम लोग पुष्पांजलि अर्पित करेंगे हम लोग। तो अगर आपके पास नहीं है तो जस्ट मेंटली आप लोग ये विचार करें कि प्रभुपाद जी मेरे सामने हैं और मैं पुष्प उनको अर्पण कर रहा हूँ। तो खाली हम लोग 3 बार प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे और प्रभुपाद जी को हम लोग ये जो पुष्प है वो अर्पण करेंगे हम लोग एवरीबॉडी। तो हम लोग प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलते हैं। सभी लोग अपने हाथ में फ्लावर ले लीजिए। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। 3 बार बोलेंगे हम लोग। सभी लोग, आप लोग भी रिपीट करना चाहे तो कर सकते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। पुष्पांजलि। श्रील प्रभुपाद व्यास पूजा महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच। और हम लोग फिर से वही प्रभुपाद जी से हम लोग प्रार्थना करेंगे, हम लोग भक्ति में ऐसे ही आगे बढ़े, हम लोग भक्तों का संग हमको ज्यादा से ज्यादा मिले और
अच्छे से जो है हम लोग प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ है इसको हम लोग इसका अध्ययन कर सकें। तो थैंक यू एवरीबॉडी। हरे कृष्णा। कल सुबह मिलते हैं हम लोग जपा के लिए और उसके बाद में फिर हम लोग श्रीमद् भागवतम के पाठ के लिए मिलते हैं। हरे कृष्णा।